let us start from this point onwards only कि media planning और media buying में major differences क्या है. So we already know that media planning is all about finding the most appropriate media for your ad campaigns. This includes conducting research. It could be market research. It could also be the competitors research कि उनकी campaigns किस तरह चल रही हैं, वो कौन से mediums को utilize कर रहे हैं. Then you have to outline the goals and objectives or of your own campaign. आपकी अपनी campaign के क्या goals and objectives हैं, and they have to be in tandem with the objectives of your organizations. आपके जो business objectives हैं, आपकी campaign के भी objective जो हैं वो उसी से मिलते जुलते ही होते हैं. So eventually you are trying to, raise an awareness about the product or trying to have direct sales effect on the product और जो भी इस तरह के different campaign होते हैं. So based on the kind of campaign that you are doing, आपकी अपनी campaign के objectives होती हैं. You decide upon the budgets, ठीक है, and you also decide that how that budget should spread across the various platforms that you have chosen. So those platforms can be broadcast, digital, OOH, and your print. ठीक है, उसमें आप सारा कुछ जो है वो डिजाइन करते हो. यू बेसिकली मेड अ प्लान कि आपका मैसेज जो है वो ऑडियंस तक किस तरह पहुंचना है. इवेंचुअली दैट इज योर कंसर्न. सो दिस all of this thing is more strategy oriented. जाहिर है आप हवा में कोई काम नहीं करते हो. You have your research to back everything, and this is a very specialized job as well. So most of the time when people start off in the media industry, advertising किसी एजेंसी वगैरह में, तो वो प्लानिंग टीम में जनरली नहीं स्टार्ट करते हैं, बिकॉज प्लानिंग इज मोर लाइक अ स्ट्रेटेजिक रोल. और मीडिया प्लानर जो है वो आपकी जो टीम में टॉप नॉच लोग होते हैं जो सालों से काम करते आ रहे हैं और काफी ज्यादा उन्होंने कैंपेन्स एग्जीक्यूट कर ली हैं, वो लोग ज्यादा इसके ऊपर काम जो है वो करते हैं. So media planning, as I told you in the last class as well, this is all about reaching the right audience at the right time with the right message and through the right media or through the right media. In comparison, media buying is basically the process of recruitment of media space. You have already designed a campaign on paper, but now it's the time to go ahead and now procure that media space. अगर आपने अपनी प्लान में लिखा हुआ है कि हमने जो है वो रमजान के टाइम में सहरी और इफ्तारी की जो ट्रांसमिशन होती है उसमें वी हैव टू मेक श्योर कि हर ब्रेक में हमारा एड जो है वो एटलीस्ट 2 दफा आए. ठीक है, ये आपने अपने प्लान में लिखा हुआ है, आपके पास बजट भी है, बट एग्जैक्टली जब आप उस वक्त मीडिया में जाओगे, उस चैनल पे जाओगे जहाँ पे आपने वो चलाना है, जो आपका मीडिया व्हीकल है, so there could be a reason कि आपने जो एंटिसिपेट किया था या मे बी लास्ट रमजान तक उनके जो रेट्स थे एक स्पॉट इज लाइक 30 सेकेंड्स का, जो आप एक एड देखते हो वो 30 सेकेंड के स्पॉट पे चल रहा है. सो एक स्पॉट जो उन्होंने लास्ट रमजान में किया था उससे जो है उनके रेट्स अब तक ट्रिपल हो गए. could be the reason, right? आपको एग्जैक्टली नहीं पता होता कि क्या रेट चल रहे हैं या नहीं. Although जितने भी channels होते हैं, like I am mainly talking about television channels right now, so they do have these rate cards और उनके सिस्टम होते हैं जिसके थ्रू आपको आइडिया होता रहता है. बट आप ये जो प्लानिंग आपने कर ली है वो आपने की है मे बी रमजान आने से 3 महीने पहले, एंड नाउ देयर इज जस्ट 1.5 महीना लेफ्ट एंड नाउ यू आर गॉन. और अब आप उनकी जो सेल्स और मार्केटिंग टीम है उनके साथ जो है वो निगोशिएट करोगे. सो यहाँ पे जो चीज है वो है सारी की सारी एग्जीक्यूशन. आपने जो प्लान बनाया है, नाउ यू हैव टू एग्जीक्यूट इट एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप अब वो मीडिया स्पेस जो आपने डिसाइड की है उसको प्रोक्योर करो, so that your ad can run on that media vehicle और जितने भी आपने उसकी frequency और reach रखना चाहिए थी उस हिसाब से. So this is the process of booking space in newspapers and publications and airtime in the media. ठीक है, और of course media buying में आपका digital भी आ जाता है, but digital में थोड़ा सा process जो है ना वो जो भी हमारा traditional model है उससे थोड़ा different है. और हम क्योंकि डिजिटल आगे थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, सो आई टेल यू अबाउट दैट जब हम डिजिटल मार्केटिंग शेयर करेंगे कि वो थोड़ा रिलेटिवली आसान है. बट व्हेन इट कम्स टू योर प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज उसमें आपको निगोशिएशंस करनी पड़ती हैं विद द सेल्स मार्केटिंग टीम्स या सेल्स टीम्स. हर डिपार्टमेंट, हर चैनल का अलग अलग नाम होता है उन डिपार्टमेंट्स का, बट वो जो सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उनके साथ. So it involves negotiation with TV channels, radio, and newspapers sales team. It involves nurturing of relationship with media vendors over years. So not just that,
बट यू शुड हैव अ टीम जो कि ओवर द ईयर जो है वो उन मीडिया चैनल्स के साथ जो है उनका एक अच्छा रिलेशनशिप बना के रखे, ताकि उनको जो है वो अच्छे से अच्छे रेट पे जो है अच्छे से अच्छा स्पॉट मिले एडवर्टाइज करने के लिए। सो दिस प्रोसेस इज मोर लाइक एक्शन ओरिएंटेड। जो मीडिया बाइंग है या जो मीडिया बायर होता है आपके एड एजेंसी में जो भी काम कर रहा है, उसका ये काम ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड होता है। प्लान बन चुका है लेकिन अब उसने उस प्लान को एग्जीक्यूट करना है। सो दिस इज वेयर योर निगोशिएशन स्किल्स कम्स इन, वेयर योर कम्युनिकेशन स्किल्स कम इन, जहाँ पे आपको फाइनेंसेस भी डील करने पड़ते हैं। सो इट्स लाइक अ होल लॉट ऑफ थिंग्स दैट you have to take care. So just like we said about the media planning, this is also about reaching the right audience at the right time with the right message through the right medium while staying cost efficient. तो इसमें आपने ख्याल ये रखना है कि जो आपने बजट डिसाइड किया है उससे ऊपर नहीं जाना है, और कोशिश करनी है कि उसके अंदर रह के या उसमें से भी you can just find a deal जो कि आपके लिए बेस्ट हो, and you can find the best possible spot for your message or for your ad on the medium that you have decided to buy space in. ठीक है, so this is the basic difference between media planning and media buying. Like practically यही difference है, but क्योंकि हम लोग media plan में सारा का सारा अपना जो buying plan है वो भी लिख देते हैं, तो उसको भी हम अच्छी तरह से जो है वो बता देते हैं। तो आप आगे आपकी जो टीम होती है बायर मीडिया बाइंग टीम, उसका काम जो होता है वो बहरहाल वो नेगोशिएशन और उसकी जो फाइनेंसेस वगैरह होता है वही देखना होता है। And both these teams actually work together. Also, most of the advertising agencies there are not different teams about, अलग अलग नहीं होती कि मीडिया प्लानिंग बिल्कुल अलग टीम करेगी और मीडिया बाइंग बहुत अलग टीम करेगी। जो बहुत ज्यादा अच्छी वाली एजेंसीज हैं जिनके बहुत बड़ा सेटअप है, दे यूजली हैव दीज सिस्टम्स के प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है वो अलग होता है, या वो एक पूरी टीम अलग होती है और बाइंग डिपार्टमेंट और उनकी पूरी टीम अलग होती है, बट दे आर ऑलवेज वर्किंग टुगेदर। बिकॉज ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपने जो लोग रखे हुए हैं मीडिया बायर में भी यू हैव लाइक अ सीनियर मीडिया एसोसिएट, वो आपका जो है जो भी स्ट्रेटेजिक लेवल पे बंदा है जो प्लानर है उसको बताए आफ्टर अ मीटिंग विद अ चैनल के जी हम गए दुनिया टीवी पे और हमने जो ओरिजिनली प्लान किया था वो प्लान नहीं है, बट दे हैव नाउ इंक्रीज देयर रेट्स। सो अब आपने उस प्लान को जो ओरिजिनली डिजाइन किया हुआ था उसमें से कुछ हेड्स इधर उधर करने पड़ते हैं, दैट यू सी कि अच्छा जी दुनिया पे ऐड चलना ज्यादा जरूरी है क्योंकि इस प्रोग्राम की बड़ी अच्छी टीआरपी जा रही है, सो वी मस्ट मेक श्योर कि उधर ये हमारा ऐड चले। तो उसकी बजाय हम जियो पे जो है वो उस स्लॉट के अंदर 8 to 9 के स्लॉट्स के अंदर 4 एड्स दे रहे थे, तो उसकी बजाय हम 2 कम कर देते हैं, ठीक है, और उनसे अभी तक हमारी निगोशिएशन शुरू भी नहीं हुई, सो वी जस्ट डू दैट। सो वो फिर जो अपने जो डिफरेंट हेड्स हैं उनको किस तरह चेंज करना होता है उसके लिए आपको जाहिर है उन्हीं लोगों के पास जाना पड़ता है जो प्लानिंग कर रहे होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर द सेम पीपल जो कि प्लानिंग भी करते हैं और फिर जाके वो निगोशिएशन भी करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा इजी भी हो जाता है। नाउ how this media buying thing is like being done in practice, because again there are a lot of things जो कि theory में होती हैं but उसमें कुछ difference आ जाता है when we actually go out, and while keeping in mind the landscape जहाँ पे हमारा मीडिया भी काम कर रहा है। So we have been talking about कि अभी currently क्या क्या मीडिया में issues and all, it affects everything, it affects advertisers as well, and it affects how things are being practiced as well. So first thing is, of course, I have already told you about this, कि advertising agencies में media buying and media planning are usually integrated under one roof. So these are not like two different things या बिल्कुल अलग अलग काम, because advertising की दुनिया में या कहीं पे भी आप communication कर रहे हो तो आप separately deal नहीं करते काफी चीजों को। I have also talked about बिल्कुल start of semester में कि usually जो full service agencies होती हैं उनका फायदा ये होता है कि वो आपको A to Z सारा काम करके दे रही होती हैं, ठीक है। और ऑफ कोर्स जब आपकी एक ही अंडर वन रूफ ही यू हैव योर प्लानिंग टीम, यू हैव योर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, क्रिएटिव प्रोडक्शन, सब कुछ एक ही जगह पर है तो इजी भी हो जाता है, तो वो ब्रांड्स को जो है वो काफी एक तरह का होलसम पैकेज मिलता है। So in most of these agencies, media buying and media planning usually are integrated under one roof and they work together to execute successful campaigns. But there are some specialist media buying agencies as well. ठीक है, कुछ एजेंसीज हैं जिनका क्रिएटिव या बाकी चीजें इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, बट उनकी जो मीडिया बाइंग है वो बड़ी अच्छी है ओवर द इयर्स और उनका उसमें नाम है।
ग्रुप एम के बारे में आपने लास्ट टाइम प्रेजेंटेशन में भी सुना, एंड ऑल्सो दे आर लाइक द बेस्ट वन, बट हमारी कुछ इवन लोकल लाहौर में टाइम एंड स्पेस मीडिया वाले हैं, सो दे डोंट डू प्रोडक्शंस एंड ऑल, लेकिन वो सिर्फ मीडिया बाइंग करते हैं और दे आर क्वाइट गुड एट दैट, ठीक है। सो ये जो चीज है, ये जरूरी नहीं है कि हर एजेंसी में हर चीज ऑफर हो रही हो, देयर माइट बी सम एजेंसी जो स्पेशलिस्ट हो सिर्फ मीडिया बाइंग के लिहाज से। The media buyer, so person who is responsible for that, they must be expert in handling finances. That includes a lot of different things. That includes raising media bills, ठीक है, because आप basically क्या हो, you are a middleman between your client and the media, ठीक है। तो client है आपका टेलीनॉर, और उसको अपनी कैंपेन चलानी है पाकिस्तान के टॉप 10 चैनल्स के ऊपर, ठीक है। सो आप जो हो वो मिडल मैन हो, आपने उनकी कैंपेन डिजाइन की है, एग्जीक्यूट करनी है, ऑल ऑफ दैट इज देयर। आपने उनके लिए स्पेस खरीदनी है, निगोशिएट करना है मीडिया चैनल के साथ, वो डायरेक्टली निगोशिएट नहीं कर रहे, सो यू आर द मिडल मैन देयर। और उसमें जितने भी फाइनेंसेस इन्वॉल्व होंगे बीच में, उन्होंने आपको जो बजट दिया है ऑफ कोर्स आपने वो प्रूव करवाया है, फिर आप जब चैनल पे आपका एड चलता है तो वो उसके बिलिंग होती है एंड एवरीथिंग, आपने वो जो है कलेक्ट करने ड्यूज ऑन टाइम, ठीक है। यू हैव टू मेक श्योर कि मीडिया को पेमेंट जो है वो टाइम पे मिले, एंड ऑल दोज थिंग्स। प्रैक्टिकली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई नो फॉर द फैक्ट कि जनरली इन चीजों के बारे में एटलीस्ट स्टूडेंट्स को नहीं बताया जाता, बट वेन यू आर इन द फील्ड तो आपका बहुत ज्यादा काम, स्पेसिफिकली व्हेन यू आर अ न्यूबी, वो यही चीजों से रिलेटेड होता है कि आपने ख्याल रखना है कि सबके ड्यूज क्लियर हो गए हैं, कोई मसला तो नहीं हुआ है, बिकॉज हमारे यहाँ एडवर्टाइजिंग का थोड़ा प्रोसेस ये है कि एड्स चल जाते हैं और 3-3 महीने तक, 6-6 महीने तक बिल्स क्लियर नहीं होते। ब्रांड्स को भी इन बातों का पता है, बट कुछ ब्रांड्स इन चीजों को लेके बहुत ज्यादा नोजी होती है, दे आर लाइक जी दे लाइक टू नो कि उनका पैसा कहाँ पे लग रहा है, एंड दे हैव द राइट टू नो दैट, ठीक है। सो लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम है कि चीजें बड़ी देर देर से हो रही होती हैं। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स apart from negotiation that you must know if you want to venture into this एडवर्टाइजिंग बिजनेस, कि आपको फाइनेंसेस वगैरह भी उसमें डील करने होते हैं ऑन बिहाफ ऑफ योर क्लाइंट। ओके, नाउ देयर आर सम इश्यूज एज वेल, ठीक है। कुछ इश्यूज भी हैं जो कि डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ सिस्टम दैट वी हैव, वो हमें ओवर द ईयर जो है वो फेस करने पड़ते हैं। सो जो टॉप कुछ इश्यूज हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहली चीज है, वी डोंट हैव एनी क्रेडिबल रिसर्च रिसोर्सेज। रिसर्च किस चीज के बारे में हो सकती होगी ऐसे कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पे आपने एक स्पेस खरीदनी है मीडिया में? व्हाई डू वी नीड रिसर्च? मैम देखने के लिए कि कौन सा चैनल ज्यादा देखा जाता है या कौन सा टाइम स्लॉट ज्यादा देखा जाता है। ओके, एंड हाउ डू वी नो कि कौन सा चैनल किस टाइम स्लॉट पे ज्यादा देखा जा रहा है? मैम टीआरपी से। परफेक्ट। अब मुझे ये बताओ कि टीआरपी क्या होती है? मैम वो रेट होता है, मतलब लाइक ऑडियंस का कि कितने लोग उसको लाइक कर रहे हैं। जैसे ना लाइक एक शो है आफताब इकबाल का, वो 3 चैनल्स पे आ रहा है, उसकी टीआरपी इस वक्त सबसे ज्यादा है। ठीक है, बेसिकली व्यूअरशिप होती है ना। व्यूअरशिप होती है, ठीक है। सो व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिसर्चेस दैट वी नीड? आई मीन जब हम एक अपना एड प्लेस करने जा रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ आवर क्लाइंट, सो वी नीड टू नो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडियंस, ठीक है, कि हमारी ऑडियंस कौन है, कहाँ है, वो सारा आपका मीडिया प्लान में ऑलरेडी चीजें जो है वो आपने लिखनी होती हैं। वो ऑडियंस कौन मैम से इसमें चैनल? कॉम्पिटिटर्स भी आएगा रिसर्च में यस, कि कॉम्पिटिटर। हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। Yes, what our competitors are doing, also what rates our competitors are getting, ठीक है। ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि you should know, at least you should have a know how कि आपका competitor जो है उसको क्या रेट मिल रहा है। सो जाहिर है अगर आप बोनस वॉशिंग पाउडर जो है वो सेल आउट करने जा रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो बाकी हैं एरियल और सर्फ एक्सेल, उनको कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको जो है वो कम रेट पे अच्छा स्पॉट मिल जाता हो, बिकॉज वो
बिगर ग्रुप है, वो बेसिकली यू नो इफ दे आर यूनिलीवर एंड ऑल, तो वो उनके यहाँ तो ये मसला नहीं है ना कि उन्होंने एक ही प्रोडक्ट सेल आउट करनी है, उन्होंने तो करोड़ प्रोडक्ट सेल आउट करनी होती है। तो ये भी इशू होता है जो निगोशिएटर्स होते हैं उनके लिए इस चीज का, इस चीज की उन्हें लाइक दे हैव टू डू रिसर्च बेस्ड, दे हैव टू मेक रिसर्च बेस्ड डिसीजंस ओवर देयर, ठीक है। ऑडियंस रिसर्च चाहिए, मार्केट रिसर्च चाहिए, जो ऑडियंस उसी में इंक्लूड हो जाती है, सारी कॉम्पिटिटर्स उसमें आ जाती हैं। अपने मीडिया ही के ऊपर रिसर्च चाहिए कि जो चैनल्स आप चूज करें उनमें से कौन सा चैनल सबसे ज्यादा चल रहा है, कौन सा चैनल नहीं चल रहा है, किस चैनल में कौन सा स्लॉट जो है आपके लिए काम का है, कौन सा स्लॉट आपके काम का नहीं है। इफ यू हैव अ प्रोडक्ट जो कि which might be you know targeted at a specific gender, तो आपने फिर देखना है कि अच्छा जी अगर women पे टारगेटेड है तो वो कौन से वक्त पे कौन से चैनल्स को ज्यादा देखती होंगी एज कम्पेयर टू अगर वो बच्चों के ऊपर टारगेटेड है तो वो फिर कौन सा चैनल लगाएंगे, ठीक है। सो ये सारी चीजें अगर आप लोग कभी आई डोंट नो अभी जो हमारे यहाँ ये जो निकलोडियन और ये सारे चैनल्स आ रहे हैं उनके पाकिस्तानी एड चलते हैं या नहीं, बट अभी कुछ अर्से पहले तक तो पाकिस्तानी ही चलते थे। तो अगर आप कार्टून नेटवर्क या निकलोडियन पे जो पाकिस्तानी एड्स आते हैं वो ब्रेक टाइम में वो एड्स देखो, तो उसमें यू विल मोस्टली सी द प्रोडक्ट जो बच्चों के खाने पीने की चीजें या उनसे रिलेटेड एड्स होंगे। ऐसा नहीं है वो एड्स बाकी चैनल पे नहीं चल रहे, बट उनकी फ्रीक्वेंसी रिलेटिवली कम है बिकॉज दे नो कि यार इनकी जो टारगेट ऑडियंस है वो भी इस वक्त यहाँ पे बैठी है, सो वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि इधर हम वो चीजें चलाएं। ये सारी डिसीजन जो है वो आइडियली, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट इश्यूज इसलिए आई विल यूज दैट वर्ड, आइडियली रिसर्च बेस्ड होनी चाहिए। हमारे यहाँ जो है वो मसला ये है कि रिसर्च जो है ना वो कम है। जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है वो बहुत ज्यादा टू द पॉइंट नहीं है या वो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे ही नैनी के जरा रिसर्च का इतना ज्यादा सालों से जो है वो भुगतान रहा है या कल्चर ही नहीं है। तो एज कम्पेयर टू द लाइक यूएस और यू नो अदर कंट्रीज, वहाँ पे जो है एडवर्टाइजिंग बहुत रिसर्च बेस्ड की जाती है। हमारे यहाँ काफी चीजें जो है ना वो परसेप्शन बेस्ड होती है इंस्टेड ऑफ रिसर्च बेस्ड। जहाँ पे हम परसेप्शन होती है, वी हैव अ परसेप्शन, जैसे कि मैंने अभी कहा है कि वो जो ऑडियंस है बच्चे वो शायद कार्टून नेटवर्क और निकोलोडियन देख रहे होंगे। आई हैव जस्ट सेड इट, आई डोंट हैव एनी रिसर्च जो इस चीज को बैक करे। हो सकता है वो देख ही ना रहे हो, वो अब जो है वो यूट्यूब पे वीडियो ज्यादा देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स पे ज्यादा देख रहे हैं, तो ये भी तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। या ये हो सकता है कि सालों से जो है वो हमारी जो वो यंगर ऑडियंस है जिनको हमें लगता है कि जी 6 to 8 या 6 to 12 ईयर्स के जो बच्चे हैं वो शायद अब निक नहीं देखते हो और कार्टून नेटवर्क नहीं देखते हो, दे माइट बी यू नो वॉचिंग कंटेंट जो कि बच्चों का कंटेंट ही नहीं है, थोड़ा सा बड़ों का कंटेंट देख रहे हो। आई मीन देयर कुड बी अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट, बट क्योंकि एक चीज कुछ सालों पहले हो रही थी उससे हमारी परसेप्शन बिल्ड हो गई हैं, तो हमारे जो एडवर्टाइजर्स हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि वो अभी तक ज्यादातर परसेप्शन और इंट्यूशन के ऊपर काम कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो अनसक्सेसफुल हैं, बट दे कैन बी मच मोर सक्सेसफुल इफ दे विल यू नो इन्वेस्ट अ लॉट ऑन रिसर्च। जो हमारी अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं वो खुद से तो पहली बात है इतनी हार्डकोर रिसर्चेस करती नहीं है। उनकी मार्केट रिसर्च जो है ना वो जनरली यही होती है कि डिजिटल मीडिया पे से एनालिटिक्स निकाल लिए, क्योंकि उसमें जो पक्की पकाई खिचड़ी मिल रही होती है उससे आइडिया कर लिया, या डिफरेंट रिसर्च कंपनीज है, गैलप पाकिस्तान का सर्वे निकाल के देख लिए, ठीक है। देर आर अ लॉट ऑफ रिसर्च बेस्ड जो यानी कि पाकिस्तान में भी कंपनीज है जैसे नीलसन वालों का यहाँ पे यू नो इफ यू नो AC नीलसन, दे हैव अ ब्रांच इन पाकिस्तान, बट उन्होंने पाकिस्तान में कभी भी जो है वो मार्केट ये मीडिया रिसर्च और ये जो TRPs का सारा सिस्टम होता है उसमें वो नहीं आए। दे वर ऑफर्ड कि आप लोग TRP सिस्टम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करें क्योंकि बाकी दुनिया में है और वो नीलसन वालों ही की रेटिंग जो है वो कंसिडर की जाती है टॉप नॉच, बट पाकिस्तान में उन्होंने कभी वो सिस्टम इंट्रोड्यूस ही नहीं किया क्योंकि फ्रॉम डे वन दे डिडंट हैव द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन आवर मार्केट के यहाँ पे जो है ना उनको पता चल गया था कि यहाँ पे सारा काम जो है ना वो थोड़ा करप्शन वाला ही सीन होता है, सो दे नेवर डिड इट। बाकी जो बड़ी बड़ी हमारी एजेंसीज हैं, यही ग्रुप एम और स्टारकॉम and all of that, they of course invest a lot because उनकी टीम बहुत बड़ी बड़ी है and they also have international affiliations, so जाहिर है वो उस लिहाज से जो है वो उनको भी वो उन रिसोर्सेज को भी यूज करती हैं या उस वाले अपने चीज को भी कैपिटलाइज करती हैं। दे आर द वन जिन्होंने स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर डेवलप किए हुए हैं यू नो टू फैसिलिटेट देयर
क्लाइंट जो भी उनके पास अपनी कैंपेन्स बनाने आ रहा है। बाकी जगहों पे ये सिचुएशन नहीं है। बाकी हमारे यहाँ काफी एजेंसीज ऐसी हैं जिनके पास पैसा है और उनके पास कुछ लोग हैं जो जरा नामी ग्रामी हैं, उन्होंने अच्छे टाइमों पे अपनी एजेंसी स्टार्ट कर ली है, सो दे जस्ट गो बाय perception now. So this is one of the major issues right now. This is also a kind of an opportunity for people who want to now venture into the advertising world. जो नए लोग आ रहे हैं कि अगर वो एटलीस्ट अपनी जो डिसीजंस है वो बेस्ड ऑन रिसर्च, बेस्ड ऑन डेटा करें, तो शायद वो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सके टू देयर क्लाइंट्स। some of our publications when it comes to the print media, हमारी कुछ publications, कुछ newspapers, कुछ magazines हैं, उनके जो circulation figures हैं वो ही सही तरह नहीं पता होते, ठीक है, because at the end of the day advertising जो है उसका सारा काम है ये कि उसने कुछ स्पेसिफिक जगहों पे ही एडवर्टाइज करना है या एक मीडिया मिक्स बनाना है। मीडिया मिक्स का प्रोसेस जहाँ पे आप कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया यूज करते हो, राइट। सो यू शुड एग्जैक्टली नो कि हम जिस चैनल पे कर रहे हैं उसकी रेटिंग्स कितनी आ रही हैं, जिस न्यूज़पेपर में या मैगजीन में कर रहे हैं उसकी सर्कुलेशन क्या है। सो वी ऑलरेडी नो कि सर्कुलेशन बहरहाल पब्लिश होती है, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन और एबीसी जो है, एबीसी पाकिस्तान, वो सर्कुलेशन फिगर्स देता है। बट स्टिल हमारे यहाँ काफी ऐसी पब्लिकेशंस हैं, काफी ऐसे न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स हैं जिनकी पब्लिकेशन या सर्कुलेशन फिगर्स हमें पता ही नहीं कि पाकिस्तान के किस शहर में इनके कितने मैगजीन जो है या कितने न्यूज़पेपर जो है वो बिकते हैं। सो समहाउ अदर वो जो आपका रडार होता है जिसमें से आपने सिलेक्ट करना होता है चीजें, मीडिया, वो आपको पता ही नहीं होता कुछ पब्लिकेशंस का, विच मीन्स कि अगेन बैक एंड पे रिसर्च इतनी नहीं हो रही है। फिर हमारा जो टीआरपी सिस्टम है दैट सोलोमन हैज जस्ट told us कि it's your television rating point, that is super faulty, it's very faulty. I know you might be thinking कि हम लोग तो इतनी ज्यादा बात करते हैं टीआरपी की कि जिस चैनल की ज्यादा टीआरपी होती है, जिस टाइम पे ज्यादा टीआरपी होती है, वो लोग बाद में आप अगले दिन आप देखते होंगे वो कहते होंगे हमारा ये शो जो है उसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और इतने लोगों ने देखा और ये हुआ और वो हुआ। और वी ऑल्सो नो कि इवन आपके जो जर्नलिस्ट हैं वो अपने एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं बेस्ड ऑन टीआरपीज, और आपके जो ड्रामा राइटर्स हैं वो ये देख रहे हैं कि एक जगह पे एक स्पेसिफिक चीज बिक रही है और उसकी टीआरपी ज्यादा आ रही है, सो इफ यू नो नागिन इज getting a lot of TRP, so they will make sure कि हर ड्रामे को उसी तरह के जादू टोने और उस तरह के कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाए। सो हमारे यहाँ जो है वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है ऑन समथिंग विच इज कॉल्ड TRP, बट द फैक्ट इज दैट इवन आवर TRP सिस्टम इज क्वाइट फॉल्टी और उसमें अभी भी काफी ज्यादा बेहतरी की गुंजाइश है। अच्छा, इसके बारे में जो है ना हम ज्यादा प्रॉपर डिस्कशन अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बिकॉज आई हैव असाइंड यू गाइज 2 रीडिंग्स, और वो आप रीडिंग्स पढ़ोगे तो आपको ज्यादा अच्छी तरह से आइडिया होगा कि व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस सिस्टम इज काइंड ऑफ फॉल्टी और इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। इसमें देयर इज दिस एंटायर थिंग मीडिया लॉजिक्स व्हिच इज लाइक द प्रीमियर कंपनी राइट नाउ जिनकी टीआरपी ज्यादातर चैनल्स फॉलो करते हैं, लाइक जो टीआरपी वो देती हैं वो ज्यादातर फॉलो करती है, उनकी एक मोनोपोली है। इसके अलावा पैमरा की भी इन्वॉल्वमेंट हो गई है 2018 के बाद से, जो उससे पहले नहीं थी टीआरपी के सिस्टम में, बट अब वो पैमरा ने भी कुछ उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस डाल दी हैं, सो उसकी वजह से जो है काफी ज्यादा इश्यूज हो रहे हैं विद दिस। एंड ऑफ कोर्स परसेप्शन ड्रिवन मार्केट है इंस्टेड ऑफ रिसर्च ड्रिवन, आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट कि काफी चीजें जो है वो परसेप्शन पे ही अभी भी चल रही हैं कि अच्छा जी, इवन दो in cases when you already have circulation figures, when you already have TRPs, you will still go for perception, क्योंकि आपका जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जो लोग बैठे हुए हैं ऊपर टॉप नोच पे जो 5-6 बाबे, they would still see से कि नहीं जी आप ये नहीं, ये वाले ऐड जो है इन्हीं चैनल्स पे चलाओ, इन्हीं की अच्छी जो है वो आपको रिजल्ट मिलेगा, तो ये भी इशू है। एंड देन देयर इज दिस मेजर थिंग विच इज द स्टेटस को, के कुछ स्टेटस को भी बना हुआ है कुछ एजेंसीज का और उनके कोरिस्पॉन्डिंग कुछ मीडिया हाउसेस का, ठीक है। सो कुछ एजेंसीज हैं जिनके कुछ स्पेसिफिक मीडिया हाउसेस के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, लाइक मीडिया चैनल्स के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, न्यूज़पेपर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, एंड चाहे वो किसी तरह भी जो मे बी एडवर्टाइजिंग के रेट्स चल रहे हों उस स्पेसिफिक एरा में, उनको बाईपास करके भी वो उनको अकोमोडेट करते हैं उन एजेंसीज को। उसकी कोई भी वजह हो सकती है, उसकी वजह हो सकती है कि बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, एंड इट इज सेड कि आपको अच्छे ताल्लुकात बनाने होते हैं। इफ यू वांट टू बी अ गुड मीडिया बायर यू हैव टू नेगोशिएट एंड यू हैव टू डेवलप योर रिलेशनशिप, बट वो ओवर द इयर्स एक स्टेटस को भी बना हुआ है इन अ वे जिसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है नई एजेंसीज के लिए।
इवन ऑफ लेट पाकिस्तान में जितनी भी नई एजेंसीज आई हैं वो ज्यादातर जो है ना वो प्रोडक्शन क्रिएटिव इन चीजों में ज्यादा काम कर रही हैं डिजिटल के ऊपर। वो ये मीडिया बाइंग वाले सिचुएशन से निकल ही गई है क्योंकि दे नो के बहुत बुरा स्टेटस को है, सो इट्स बेटर नॉट टू इवन गो इनटू दैट ट्रैप। बल्क बाइंग का एक बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है। बल्क बाइंग इज समथिंग के जैसे कि अगर से नेस्ले है या रैकेट पेंडीजियर है या वही यूनिलीवर है, ऑल दीज यू नो ह्यूज कंपनीज, तो वो एक वक्त में जो है अपनी हजार हजार प्रोडक्ट को जो है वो एडवर्टाइज कर रही होती है। तो वो जो स्पेस होती है वो बल्क में खरीद लेते हैं मीडिया से। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट वन प्रोडक्ट, वो जाहिर है उनके पास वो ज्यादा आपका स्पेस खरीद रही है उस लिहाज से। तो अगेन जो छोटी वाली प्रोडक्ट्स है जिनकी कोई एक ही प्रोडक्ट आ रही है, जो एक दराज है जिन्होंने सिर्फ दराज ही को सेल आउट करना है, दे डोंट हैव थाउजेंड्स अदर थिंग्स, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अच्छी स्पेस लेना और अच्छे रेट स्पेस लेना इज नॉट एन इशू, पर अच्छे रेट्स के ऊपर जो है मीडिया पे स्पेस लेना। तो बल्क बाइंग का भी इशू है। और जो हमारे चैनल्स होते हैं, चैनल्स की सेल्स टीम्स होती हैं, वो बड़ा प्रेफर करते हैं कि भाई उनको जो है वो बल्क बाइंग वो मिल जाए इस तरह के, क्योंकि लुक एट इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, एडवर्टाइजर ने मीडिया पे स्पेस खरीदनी है तो वो भी एक तरह से सेल्स पर्सन है उधर, बट वो जिनसे स्पेस खरीद रहा है दैट मीडिया चैनल, उनका मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट, उनका मकसद भी एट द एंड ऑफ द डे यही होता है कि उन्होंने अपनी जो स्पेस है उसको सेल आउट करना है, ठीक है ना। वो दे डोंट वांट कि उनका जो चैनल है उस पर अगर ड्रामा चल, दे वुड बी वेरी हैप्पी कि 30 मिनट्स का ड्रामा चले और 30 मिनट्स एड ही चलते रहे। बट अगर वो सक्सेसफुल नहीं होते स्पेस पेज में अपने, तो उनको ही नुकसान हो रहा होता है अल्टीमेटली। तो इस सिचुएशन में उनको ये जो बल्क बाइंग वाले क्लाइंट्स आते हैं ना वो बड़े पसंद आते हैं कि जी यूनिलीवर को ऐड दे दिया। एंड दैट्स व्हाई यू ऑलवेज सी के एक ब्रेक के दौरान, वैसे तो आजकल कोई देखता नहीं है एड्स, लेकिन अगर आप कोई एक ब्रेक देखो बिटवीन अ ड्रामा, सो यू कैन जस्ट काउंट के इतने इस ब्रेक में यूनिलीवर के कितने एड्स चले, उनके कितनी प्रोडक्ट्स के एड्स चले हैं। वो उसकी वजह ये होती है कि आप इतनी बल्क में स्पेस खरीद लेते हो। Even though that's not a bad practice from their point of view, but considering that there are a lot of other advertisers जो कि और स्मॉल और मीडियम साइज कंपनीज या प्रोडक्ट्स के लिए स्पेस खरीदना चाह रहे होते हैं, उसमें इशू होता है। और इससे रिलेटेड अगेन पैमरा ने भी बहुत ज्यादा रूल्स नहीं बनाए हैं। आपकी जो पाकिस्तान एडवर्टाइजर्स सोसाइटी और पाकिस्तान एडवर्टाइजर एसोसिएशन हैं वो इस बारे में बात तो करते हैं, बट एट टाइम्स बहुत ज्यादा उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नॉनदलेस नहीं हुई है। सो ये सारे बहरहाल जो है issues है that you have to keep in mind. अच्छा, and the final one is the digital media. This is kind of a new thing जो कि somehow or other उसको इस तरह से टैप नहीं किया जा रहा है हमारी एडवर्टाइजिंग की प्रोफेशनल्स इस तरह से टैप नहीं कर, इस तरह से करना चाहिए। So what is happening that digital media is facilitating the entire media buying process and it is also affecting it in kind of an adverse way. How it facilitates? It facilitates because अब वो जो है वो आपको वो निगोशिएशन वाले और ये सारी जो प्रोसेसेस हैं उससे गुजरना नहीं पड़ता। नाउ यू हैव ऑल द प्लेटफॉर्म्स, सो गूगल है, आपका फेसबुक है, आपका इंस्टाग्राम, लाइक फेसबुक एंड यू नो उनका एंटायर ग्रुप है, और ट्विटर है, उनके बड़े सिंपल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है ना। उन्होंने अपनी जो भी पर एड का हिसाब किताब रखा हुआ है कि इट्स अप टू यू कि आपने किसको टारगेट करना है। एडवर्टाइजर के ऊपर है, एडवर्टाइजर के ऊपर है कि वो अपनी जो है वो कौन कौन से पेजेस पे और कौन कौन से डेमोग्राफिक के लोगों को अपने एड्स दिखाना चाह रहा होगा, ठीक है। और बेस्ड ऑन दैट, बिकॉज एल्गोरिथम्स जिस तरह से डिजाइन हुए होते हैं, वो आपका जो मैसेज है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑडियंस को पहुंच जाता है। तो अब यहाँ पे कोई निगोशिएशन नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है कि कोई जो है यहाँ पे बहुत बड़ा मीडिया मुगल जो है वो जाके मार्क जकरबर्ग से बात कर रहा होगा कि जी आप जरा रेट कम कर दें या ज्यादा कर दें। सो एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड से फैसिलिटेट हो रही हैं छोटी कंपनियां, छोटे एडवर्टाइजर्स एंड दोज पीपल हु आर गुड एट डिजिटल मार्केटिंग, they are basically able to achieve results. At the same time, it is also affecting our media buying practices as well, क्योंकि somehow or other जो हमारा एक वही स्कोप है कि हम रिसर्च करते नहीं है और हम अंधाधुंध पैसा लगा देते हैं, तो वो वहाँ पे वो वाले मीडिया बायर्स जिनको आइडिया नहीं है कि हाउ डिजिटल मार्केटिंग वर्क्स, उन्होंने डिजिटल विंग्स तो खोल ली अपनी अपनी एजेंसीज में, बट दे हैव नो आइडिया, दे हैव लाइक जीरो आइडिया कि किस तरह मार्केटिंग
वर्क करती है वो जो है यहाँ पे बहुत बुरी तरह फेल भी होते हैं. सो देयर आर लॉट ऑफ एजेंसीज इन रीसेंट टाइम जो कि पहले बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही थी बट अब वो थोड़ा पीछे चले गए हैं. उसकी वजह ये है कि उनको आइडिया ही नहीं हुआ कि डिजिटल इज नॉट जस्ट अबाउट पोस्टिंग एन एड ऑन फेसबुक. इट्स अबाउट के यू शुड हैव पीपल जो कि उसमें एक्सपर्ट्स हो, उनके पास डिफरेंट किस्म की सर्टिफिकेशन हो, एंड देन दे शुड बी एबल टू यूटिलाइज डेटा एंड मेक रिसर्च बेस्ड डिसीजंस ओवर देयर. सो ये जो डिजिटल मीडिया लैंडस्केप है इससे चीजें जो हैं वो चेंज हुई है. एट द सेम टाइम जो हमारा ट्रेडिशनल मीडिया बाइंग प्रोसेस है टेलीविजन वाला और रेडियो और न्यूज़पेपर्स वाला, उसमें भी काफी ज्यादा चेंज हुआ है. एक बहुत कॉमन चीज जो कुछ ऐसे से देखने में आई है वो ये देखने में आई है कि जो आपकी सेल्स और मार्केटिंग टीम बैठी होती है किसी भी चैनल के ऊपर, वो इस चीज को बहुत कंसिडर करते हैं कि अपार्ट फ्रॉम टीआरपी उनके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं. और अगर कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा देखा जाता है तो वो अपने जब उन्होंने अपना पिचिंग करना होता है कि आप हमारे यहाँ स्पेस खरीदें हमारे चैनल पे, तो वो उन फैक्ट्स एंड फिगर्स को जरूर पिच करते हैं कि फॉर एग्जांपल समबडी टॉक्ड अबाउट आफ्ताब इकबाल और उनके शोज. तो आफ्ताब इकबाल की शोज जो है उनकी बहुत अच्छी व्यूअरशिप आती है यूट्यूब पे भी. तो अब उनको ये एक वे आउट मिल गया है कि अगर फॉर एग्जांपल टीआरपी इतनी अच्छी ना भी आए किसी शो की बट उसकी व्यूअरशिप जो है वो यूट्यूब पे बहुत अच्छी है, सो दे वुड एक्चुअली मेक श्योर कि उसके रेट जो है टेलीविजन प्रोग्राम के हाई ही रहे हमेशा, बिकॉज वो कहेंगे कि जी हमारे तो व्यूअरशिप यूट्यूब पे बहुत है. तो आप अपनी जो है वो एड चलाएं टेलीविजन पे और साथ में जो है वो आप यूट्यूब पे भी टारगेट कर सकते हैं हमारा एड, और वी आर जस्ट गिविंग अ काइंड ऑफ अ पैकेज. सो वो बड़ी अजीब अजीब तरीकों से जो है वो बहरहाल अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं एडवर्टाइजर्स को, और एडवर्टाइजर्स को भी अल्टीमेटली अपना फायदा नजर आ रहा होता है एंड दे काइंड ऑफ agree to that. So these are the different things like different practices which are happening within the media buying वाला जो सारा process है. ऑल्सो मीडिया बाइंग के कुछ स्पेसिफिक तरीके भी होते हैं या कुछ फॉर्मूलाज वगैरह भी कहे जाते हैं. देयर आर सर्टेन टर्मिनोलॉजीज एज वेल जो कि स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा यूज की जाती हैं एडवर्टाइजर्स जिनको यूज करते हैं टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट द ऑडियंस, तो वो ऑडियंस कौन सी है, फिर उसमें से टारगेट ऑडियंस आएगी तो हमने उसको किस तरह रिप्रेजेंट करना है, रीच क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, बाकी कुछ 2-3 चीजें तो मैंने लास्ट टाइम भी आपसे डिस्कस की थी. सो वो सब चीजें भी important है to for you guys to know, and we will be discussing all these things in the upcoming class hopefully.